الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضؤوا بسم اللہ۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے وضو جو کہ ایک طرح کا پریکٹیکل طریقہ ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ وضو کرتے ہوئے آپ کون کون سی غلطیاں کرتے تھے، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ العزیز ان غلطیوں سے بچنا ہوگا۔ تو اس لیے وضو کرنے سے پہلے یا وضو کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ آٹھ چیزیں جو ہیں وہ آپ اس طریقے سے کریں۔ 8 چیزیں ان کا کرنا لازمی ہے، وہ وضو میں کرنی لازمن ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مس ہو گئی تو آپ کا وضو کیا ہو جائے گا؟ مس ہو جائے گا۔ اس لیے وہ 8 چیزیں پہلے کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی، اور بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں مناسب، بلکہ مناسب یہی ہے کہ اللہ کے نبی سے جو بات ثابت ہے بسم اللہ، وضو سے پہلے اللہ کے نبی سے صرف بسم اللہ ثابت ہے اور الرحمن الرحیم آگے ثابت نہیں، تو ہم کوشش کریں گے ہم صرف بسم اللہ ہی پڑھ کے وضو شروع کر دیں۔ دوسری چیز جو بسم اللہ سے بھی پہلے وہ نیت، یعنی پہلا کام نیت کرنا، دوسرا کام بسم اللہ پڑھنا، تیسرا کام ہاتھوں کو کنیوں تک دینا، چوتھا کام پورے سر کو دھونا، اور پھر چھٹا کتنا ہو گیا؟ 5واں جو ہے پورے سر کا مسح کرنا، اور پھر پورے پاؤں کو دھونا، اور اس کے بعد جو ہے ترتیب سے چلنا اور پے در پہ وضو کرنا۔ یعنی نیت، بسم اللہ، ہاتھوں کو دھونا کنیوں تک، منہ کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو دینا، اور ترتیب سے وضو کرنا اور پے در پہ وضو کرنا۔ یہ 8 چیزیں وضو میں ضروری ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی چیز بھی چھوڑیں گے تو آپ کا وضو ناقص ہو جائے گا اور نامکمل رہے گا۔ اس کے بعد وضو کرنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہم نے بیان کیا تھا، کان یتوضأ بمد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 مد پانی سے وضو فرماتے تھے۔ تو مد کی مقدار یہ ہے کہ ایک نارمل جسامت کا آدمی ان دونوں ہاتھوں کو جمع کرے، اس میں جتنا پانی آتا ہے وہ 1 مد کی مقدار ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اتنے پانی سے وضو کرنا چاہیے۔ اب وضو کرنا، ہم نے وضو شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو ہم نے شروع۔ سب سے پہلے نیت دل کا ارادہ ہے، ہم نے ارادہ کیا، اور اس میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت لازمی نہیں ہے کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وہی لوگ کہتے ہیں تیمم میں نیت لازمی ہے، جبکہ جو یہ وہ 2 غلط چیزیں ہیں کہ تیمم بھی تو پھر عبادت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو نیت کرنا ہم نے جان لیا کہ نیت کرنا لازمی ہے۔ نیت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے وضو شروع کیا۔ وضو کرنے سے پہلے 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، یہ 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، یہ پانی ڈالا، 1 2 3، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کلی کی۔ اگر آپ نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز پہنی ہو تو آپ نے وہ اچھی طریقے سے دھو لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلی کی۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کلی میں پانی لیا اور آپ نے منہ میں پانی ڈالا، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھا دیا نرم ہڈی تک، اور اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو غرارے کرنے اور نرم ہڈی تک پانی کو لے جانا ہے۔ اگر روزہ ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا ہے، کہیں اندر نہ پانی چلا جائے، اور غراروں سے بھی پھر اجتناب کرنا ہے۔ 1 چلو پانی لیا۔ بخاری و مسلم کی جو روایت ملتی ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ نے 1 چلو پانی لیا اور آپ نے منہ اور ناک میں 1 دفعہ ہی ڈال دیا، پھر اس سے آپ نے منہ صاف کر لیا اور اس بائیں ہاتھ سے آپ نے ناک کو اچھے طریقے سے جھاڑ لیا، پھر دوسری دفعہ پانی لیا منہ میں اور پھر ناک میں، آدھا منہ میں ڈالا آدھا ناک میں چڑھا دیا، پھر اسی طریقے سے اس سے جو ہے منہ کو صاف کر لیا اور اس سے ناک کو صاف کر لیا، تیسری دفعہ بھی اسی طریقے سے آپ نے کر لیا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ علیحدہ سے منہ میں پانی ڈالنا اور علیحدہ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن زیادہ صحیح روایات اور جو آج کل جس عمل کو چھوڑ دیا گیا ہے، جو بخاری و مسلم کے سب کے نزدیک یعنی بخاری کی احادیث حجت ہے، ان میں یہ روایات ملتی ہیں کہ 1 ہی چلو سے ناک میں بھی اور منہ میں بھی پانی ڈالنا، پہلے کلی کرنی ہے، منہ میں پانی ڈالنا اور باقی کا پانی ناک میں چڑھا دینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے چلو بھر کے پانی لینا ہے اور اپنے منہ کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور 1 کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک اچھے طریقے سے آپ نے دھو لینا ہے۔ اب منہ کو دھویا، 1 دفعہ دھویا، اور پھر جو ہے دوسری دفعہ دھویا، پھر تیسری دفعہ دھویا، 3 دفعہ دھو لیا۔ اس کے بعد داڑھی کا ہلال کرنا ہے۔ داڑھی کا ہلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 چلو لیا
पानी का और उसको इस तरीके से दाढ़ी की जड़ों तक ले गए और उसको इस तरीके से फिर आपने बालों तक अच्छे तरीके से पहुंचा दिया। अब इसमें एक बात जो है बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि जहाँ दाढ़ी फ़र्ज़ है वहीं पे एक और चीज़ से भी महरूमी हो जाती है कि दाढ़ी जो है, दाढ़ी का हिलाल करना। अगर आपने दाढ़ी नहीं रखी हुई तो फिर दाढ़ी का हिलाल इस सुन्नत के सवाब से महरूम हो गए। आप कहेंगे अगर एक बंदे की दाढ़ी है ही नहीं तो वो तो मुकल्लफ ही नहीं है ना, लेकिन एक बंदा मुकल्लफ हो गया, उसकी दाढ़ी आ गई, उसके बाद उसने दाढ़ी नहीं रखी हुई तो वो हमेशा के लिए इस सुन्नत के सवाब से महरूम हो जाता है। इसलिए हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अपनाने की भी शदीद ज़रूरत है। उसके बाद हमने चेहरा धो लिया और अच्छे तरीके से धोने के बाद हमने क्या किया, दाढ़ी का हिलाल कर लिया। अब जो है हम दोबारा हाथों को धोएंगे। हाथ को यहाँ से लेकर कुन्नी तक धोना, इलल मराफिक, ये हड्डी तक। आपने एक दफ़ा हाथ को धोया अच्छे तरीके से मल के, दूसरी दफ़ा धोया, तीसरी दफ़ा, 3 दफ़ा धो लिया। फिर जो है इस हाथ पे पानी दाएं हाथ से डाल के इस तरीके से आपने इस जिस्म को यहाँ से पानी डालना है और इस कुन्नी तक इस हाथ को भी अच्छे तरीके से धो लेना है। और यहीं पे आपने उंगलियों का खिलाल करना है। पहले दाएं हाथ की उंगली का खिलाल इस तरीके से, फिर बाएं हाथ की उंगली का खिलाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाथ भी धो लिए। अब सर का मसा करना है। तो सर के मसे का तरीका यह है कि आपने पानी लिया, ठीक है, आपने पानी लिया और फिर उस पानी आपने हाथ गीले करने के बाद अपने इस तरीके से हाथों को जोड़ लेना है और ये यहाँ पे शानी पे रखने हाथों को, इनको यहाँ से लेकर गुद्दी तक ले जाना है, पीछे गुद्दी जो है यहाँ तक। फिर यहाँ से आपने इसी तरीके से इन हाथों को वापस ले आना है शानी तक। ये आपके सर का मसा हो गया। मसा करने के बाद आपने जो है दोबारा पानी ले लें, ज़्यादा बेहतर है, ना लें तो तब भी जायज़ है, दोनों रिवायात मिलती हैं, लेकिन ज़्यादा सही है ये दोबारा अगर आप हाथ गीला करके फिर जो है ये 2 उंगलियां शहादत की ये कानों के सुराखों में डाल दी और ऊपर से अंगूठे से जो है आपने कानों के ऊपर का मसा किया ये, और उंगलियों को जो है आपने अंदर से घुमाया, इस तरीके से आपने अंदर से ये घुमा लिया, अच्छे तरीके से ये घुमा लिया और कानों को इस तरीके से आपने बिल्कुल साफ कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, पाँव की बारी आई। तो पाँव को आपने अच्छे तरीके से धो लिया और इसमें जो है पानी आपने दाएं हाथ से डाला और बाएं हाथ से पाँव को मला और ये जो है उंगली से आपने इनका अच्छे तरीके से हिलाल कर लिया। पाँव को 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 3 दफ़ा अच्छे तरीके से धो लिया इस पाँव को। फिर इस पाँव की बारी आई, इसको भी इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से धो लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वुज़ू जो है कंप्लीट हो गया। इसमें जो है अगर आपने नाखन पालिश या इसी तरीके से आटा या कोई इस तरीके से आटे के अंदर अगर पानी चला जाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन इतना गहरा लगा हुआ है कि उसके अंदर पानी नहीं जा रहा, या इसी तरीके से कोई और इस तरीके की चीज़ आपके हाथों पे लगी हुई है जिसके ज़रिए से आपके हाथों के अंदर पानी नहीं जा रहा या आपके जिस्म पे पानी नहीं लग रहा तो आपका वुज़ू नहीं होगा। वुज़ू में दूसरी बात जो मद्देनज़र रखनी है कि अगर आपने वुज़ू कर लिया और वुज़ू के बाद कोई जिस्म का हिस्सा खुश्क रह गया तो फिर क्या हुक्म है। वुज़ू करने के बाद अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो आपको वुज़ू दोहराना पड़ेगा। वजह क्या है, अगर आपके पाँव मिसाल के तौर पे कोई पाँव का थोड़ी सी जगह खुश्क रह गई, आप आए और आपने देखा पाँव की जगह खुश्क है तो पाँव को वैसे भी एंड में धोते हैं तो उसमें आप जो है गीले हाथ ही यानी उससे ही पानी लगा दें तो इंशाल्लाह आपका वुज़ू सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई और उद्व जो है मिसाल तो मुंह खुश्क रह गया और आपका बाजू खुश्क रह गया और आप जो है मस्जिद में आ गए, आपने देखा आपका बाजू खुश्क है तो अब क्या करना होगा, अब जो है आपको दोबारा ये बाजू धोना पड़ेगा, दोबारा जाके वुज़ू करना पड़ेगा। वजह क्या है कि हमने कहा तरतीब फ़र्ज़ है, तरतीब फ़र्ज़ है। तो जब तरतीब फ़र्ज़ है तो फिर इस तरतीब से ही चलना पड़ेगा कि दोबारा से जिन आज़ा को धो चुके हैं ठीक है, और अगर आज़ा अभी गीले ही हैं तो आप दोबारा बाजू को धो के वहाँ से आगे फिर दोबारा नीचे से वुज़ू कर लें। वुज़ू कर लिया, वुज़ू करने के बाद दुआएं जो साबित हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने अच्छे तरीके से वुज़ू किया, ये दुआ पढ़ ली, रब ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं जिससे चाहे दाखिल हो जाए। उसके बाद अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। फिर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसके मतलब भी रिवायात में आता है कि ये इंसान पढ़ता है तो फरिश्ते इसको सफ़ेद कागज़ में लिख के रख देते हैं जो क़यामत तक नहीं खोले जाएंगे, फिर क़यामत को ये जो है ये आमाल खोले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वुज़ू का तफसील तरीका समात कर लिया। उसके बाद जो बारी आ जाती है कि मसा करना, तो मसा सर का मसा आपने देख लिया।
अब जो है पाँव का मसा या सर का मसा, पगड़ी पहनी हुई हो तो फिर भी सर का मसा इसी तरीके से सर का मसा भी कर सकते हैं, आपने अगर पगड़ी पहनी हुई है। और अगर आपने मोज़े जुराबें पहनी हुई हैं तो उन पे भी मसा किया जा सकता है। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो साबित है, हत्ता कि सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा, इन तमाम रिवायात, तमाम कुतुब अहादीस की इन तीनों किताबों में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है, तवद्दअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मसह अलल जौरबैन वन नअलैन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुदू किया तो आपने जो है वुदू किया और उसके बाद मसा किया। मसा किस पे किया? जौरबैन, जराबों पे, वन नअलैन, और जूतियों पे। तो मसा जराबों पे भी हो सकता है, मोज़ों पे तो सबके नज़दीक है। अब जराबों पे मसे में जो थोड़ा सा इख्तिलाफ है उसमें यह ज़हन नशीन कर लें कि अहनाफ के नज़दीक भी जराबों पे मसा जायज़ है, मुफ्ताबी कौल यानी सही कौल के मुताबिक, लेकिन उन्होंने चंद शराइत ऐड की हैं। चुनांचे अबू हनीफा रहमहुल्लाह शुरू में कहते थे कि मसा जो जराबों पे नहीं हो सकता, और एंड में उन्होंने अपने कौल से रुजू किया अल्लज़ी मात फीही, जिसमें वो वफ़ात पा गए, उस बीमारी की हालत में उन्होंने वुज़ू किया और वुज़ू करते हुए जराबों पे मसा किया, ये बताने के लिए कि मेरे शागिर्दों देख लो मैंने अपने कौल से रुजू कर लिया है। तो मसा फिर ये, और उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला, दीगर तमाम के तमाम सहाबा, यानी बहुत सारे सहाबा से ये साबित है कि वो जराबों पे मसा करते थे। और इस एतबार से जराबों पे मसा करने पे इजमा कायम हो गया है। क्यों कि ये तो आपको पता है कि सहाबा मसा करते थे, लेकिन उनको मना किसी ने नहीं किया, देखने वालों ने, कोई भी उनका मुखालिफ नहीं था, किसी ने ये नहीं कहा जराबों पे मसा जायज़ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये इजमा सहाबा है, हदीस से तो साबित ही है और इजमा सहाबा से भी साबित है कि मसा जराबों पे करना चाहिए, और ये साबित है। और अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने तो यहाँ तक साबित कर दिया कि ये साबित ही नहीं बल्कि ये सुन्नत है, यानी बेहतरीन तरीका है। बाकी जो उन्होंने शर्त ये लगाई है कि जराबों पे ये शर्त है कि इतनी मोटी हो कि उसके ऊपर अगर पानी गिरे तो वो पी के उसको पाँव तक ना पहुँचाएँ, ये उनकी शर्त है। लेकिन इस शर्त की दलील कहीं भी नहीं, सिर्फ उनका कियास है कि मोज़ों से नहीं जाता, इसी तरीके से इससे भी ना जाए, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं। अब मसे का तरीका क्या है? मसे का तरीका यह है कि आपने इसका तरीका सही जो है, सही अहादीस से कहीं भी साबित नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल एक यानी कैफियत बताई हो कि किस तरीके से। बाकी रहा ये कि मसे का से ही पता चलता है, मसा का मानी कि उसको जो है मस करना। तो अब मसे का तरीका जो ज़ईफ़ रिवायात को भी मद्देनज़र रख के ये साबित होता है कि आपने अपनी उंगलियों को गीला कर लिया। इतना साबित होता है कि ऊपर के हिस्से को करना है, लेकिन इसकी कोई खास कैफियत नहीं बयान की कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। लिहाजा इसका यह तरीका कि आप हाथों को गीले कर लें, अपनी उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को गीला किया और इस तरीके से आगे रखी, जराबे पहनी हुई हैं, मोज़े पहने हुए हैं, यहाँ से आपने रखे और इनको ऐसे पीछे लिया, बस ये आपका मसा हो गया। इसी तरीके से दूसरे पाँव पे, और दूसरी बात से ज़ईफ़ रिवायत में ये तरीका भी ठीक है कि एक हाथ से इसको कर लिया और दूसरे हाथ से इसको कर लिया, तो दोनों तरीके इंशाल्लाह ठीक है। तो ये हो गया हमारा मसे का तरीका। उसके बाद जो बहुत ही पॉइंट की बात है कि मसा टूटता कैसे है, मसा टूटता कैसे है। आपने जराबों पे मसा किया है तो इसमें लोगों के अंदर एक गलतफहमी ये है कि वो कहते हैं हमने जराबें पहनी है और उसके बाद उन्होंने वुज़ू किया और मसा किया। मैंने वुज़ू के लिए, मसे के लिए एक शर्त ये है कि आपने जराबें पहनी हो या मोज़े पहने हो, तहारत पे, वुज़ू पे, आप एक दफ़ा आपने वुज़ू किया, उसके बाद आपने क्या करना है, मोज़े या जराबें पहनी है, अब आपको मसे की इजाज़त है। मसे की इजाज़त कितने दिन है? अगर आप घर पे रहते हैं, मुकीम है, मुसाफिर नहीं है, तो 1 दिन और रात मसा कर सकते हैं, 1 दिन और रात मसा कर सकते हैं। और अगर आप मुसाफिर हैं तो 3 दिन और 3 रातें मसा कर सकते हैं। उसके बाद आपने मसा करके वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद जराबें पहन ली, और जराबें पहनने के बाद आपने दोबारा, यानी वुज़ू टूट गया, आपने दोबारा वुज़ू किया, फिर जो है आपने वो दोबारा जो है मोज़े, तो उस असना में अगर एक दफ़ा आपने मोज़े उतार दिए तो आपने जब मोज़े उतारे उस वक्त ये देखा जाएगा कि आप पाकी की हालत में थे या नापाकी की हालत में। वुज़ू की हालत में अगर आपने मोज़े जब भी उतार दिए, वुज़ू की हालत में उतार दिए, तो फिर दोबारा पहन के उनसे मसा किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका वुज़ू टूट चुका था और आपने मोज़े उतार दिए तो फिर दोबारा से वुज़ू करके फिर उस पर मोज़े पहन के फिर मसा करना होगा। दूसरी बात ये, गुस्ल, अगर आप पे गुस्ल फ़र्ज हो गया है तो तब भी मसा काम नहीं देगा, फिर भी आपको जराबे और मोज़े उतारने पड़ेंगे। और तीसरी बात कि जी आपने कहा कि 1 दिन और रात, तो इसकी मुद्दत क्या है? इसकी मुद्दत यह है कि मिसाल के तौर पे ये इल्मी बातें हैं, अगर खुश्क हैं, हम किससे कहानियाँ सुनने के आदी हो चुके हैं, तो इस वजह से बाद दफ़ा इल्मी बातों से जल्दी थक जाते हैं। लेकिन ये ऐसी बातें हैं कि जो आपको फिर शायद ही नसीब हो सुनने में, तो इसलिए तवज्जो रखा करें। फिर यह है कि मुद्दत इसकी क्या है? आपने फजर की नमाज के बाद वुज़ू किया, फजर की नमाज के बाद वुज़ू किया, अब आपने मोज़े या जराबे पहन लिए,
وضو کرنے کے بعد پہن لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں گیلے جسم پہ ہی پہن لو، اور بیچاروں کو آگے تو سردی ہے اور گیلے پھر پاؤں پہ آپ جرابیں پہن لیں گے تو اور سردی لگے گی، تو یہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ ہے کہ پاؤں کو خشک کر کے پہن لیں، لیکن طہارت کی وضو کی حالت میں پہنیں، وضو کی حالت میں آپ نے یہ پہن لیے۔ اب پہننے کے بعد آپ نے فجر کے بعد وضو کیا تھا اور وضو کی حالت میں آپ نے جرابے اور موزے پہن لیے تھے۔ اب یہ ہوا کہ مغرب کے ٹائم آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جو آپ نے صبح کیا تھا، مغرب کے ٹائم آپ کا وضو ٹوٹ گیا، نقطے کی بات ہے، مغرب کے ٹائم آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو اب مغرب کے ٹائم آپ نے وضو جو کیا اور اس پہ مسح کیا، جرابوں پہ جو مسح کیا، اس وقت سے لے کر آگے تک جو مدت اکاؤنٹ ہوگی وہ مدت ہوگی مسح کی، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مسح کی مدت کیا ہوگی؟ جب آپ نے اس پہ مسح کیا، یہ نہیں کہ جب آپ نے وضو کیا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یار ہم نے اگر ایک دن جو ہے مثال کے طور پہ ایک بندہ کوئی کسی نے وضو کیا اور ایک دن وہ پورا سویا نہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جرابیں پہنی ہیں، وضو کیا تھا اور اس کے بعد جرابیں پہنی ہیں، تو ایک دن میں نے وضو نہیں کیا اور اسی وضو میں ساری نمازیں پڑھتا رہا، لہٰذا اب جو ایک رات ہی اس کی مدت باقی رہ گئی، یہ غلط ہے۔ مدت کیسے پتہ چلے گی؟ آپ نے فجر، آسان مثال ہے، فجر کے وقت وضو کیا، پھر جرابیں یا موزے پہن لیے، اب آپ کی مدت ابھی نہیں شروع ہوئی، آپ کی مدت ایک دن اور رات کب شروع ہوگی؟ آپ نے مغرب کے ٹائم آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جب آپ کا وضو ٹوٹا اور آپ نے اس وقت وضو کیا تو وضو کرتے ہوئے جب مسح کیا، وہاں سے آپ کی آگے کی مدت شروع ہوگی اور وہ مدت ہوگی ایک دن اور ایک رات اگر آپ مقیم ہیں، اور اگر آپ مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 رات، یہ اس کی مدت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکام کو سمجھ کر ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔